हेलो प्रणाम नमस्कार पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं ग्रीन तत्व टॉक्स माय सस्टेनेबल पॉडकास्ट। सो आजकल अगर सबसे ज्यादा कुछ बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट द इको फ्रेंडली कॉजेस, दैट इज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। बिकॉज चीजें तो प्रोड्यूस हो रही हैं, कचरा भी ढेर हो रहा है, बट द सोल्यूशन टू मैनेज दैट वेस्ट इज समथिंग व्हिच इज रियली अ बिग चैलेंज. A latest news also says that a significant challenge for India and world, as per the World Bank, is the waste management. The World Bank's report foresees a significant challenge. The expected global population increase, along with rising income levels and urbanization, will only lead to a considerable growth in waste generation. Waste management बहुत ही बड़ा sustainability challenge है, and not just in India but globally. द वर्ल्ड बैंक की रीसेंट कमोडिटी मार्केट आउटलुक शीट लाइट देती है हमें कि वेस्ट जनरेशन इज हैविंग इट्स फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सर्टेनली द एनवायरनमेंट. आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक इंडिविजुअल ग्लोबल एवरेज पे 376 kg ऑफ वेस्ट जनरेट करता है, और ये डेटा है 2020 का. तो आई एम श्योर इन 3 सालों में दिस वेस्ट हैज ओनली इंक्रीज्ड बट नॉट डिक्रीज्ड. जबकि हम एक वर्ल्ड में बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की, जिसे हम एसडीजी भी कहते हैं, एंड एसडीजी 11 कहता है which aims to make cities and communities inclusive, safe, resilient and sustainable. Rising waste, especially in the form of plastics, is emerging as a critical concern. बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से एनजीओज हैं जो कि इस इनिशिएटिव के लिए अपना काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द वेस्ट मैनेजमेंट. इसी तरह का एक छोटा सा एग्जांपल है डेटॉल का. दे हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स अ क्लीन एंड हेल्दी इंडिया सिंस 2014 वाया द बनेगा स्वच्छ इंडिया इनिशिएटिव व्हिच इज हेल्म्ड बाय कैंपेन एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी. The campaign aims to highlight the interdependency of humans and the environment and of humans on one another with the focus on one health, one planet, one future, leaving no behind. तो इस तरह से कई कंपनीज हैं, कई लोग हैं, कई टीम्स हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सतत कार्यरत हैं और अपना काम कर रहे हैं. तो इसी तरह की एक इनिशिएटिव की आज हम बात करते हैं which is run by शिवराव छल्ला, who is founder of 3R Zero Waste, which is based in Gurugram. So इस बात को आगे बढ़ाने के लिए first of all let's welcome Shivraj Challa ji on Green Tattva Talks. Good morning Shivraj ji, how are you doing? Good morning Panchtatva girl, and I hope this is a great day to begin with. Certainly. It's a pleasure to have you on Green Tattva Talks. It's a pleasure and it's a great day for me too. So आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन शिवराज जी की एंड 3R Zero Waste की from my side. Shivraj ji is based in Gurugram. He is from Kolkata, and after studying BTech from Hyderabad, he has worked in BHL, and not only that, he has even worked across all the continents in almost 12 countries. But ये सारी services globally देने के बाद, he came back to India with a mission to clean India when he started 3R Zero Waste in 2020. इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इनसे हम जरूर लेंगे. ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि 3R Zero Waste is founded with a clear belief to do things differently when it comes to waste management, जो कि मेरा आज का concern भी है. He literally saw wonderful opportunity when he saw कि कितना billion ton is lying in India since independence. Yes guys, and इसी तरह से ये waste generate होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, and it is only piling up in landfills or it is getting burned. And 3R Zero Waste has also been featured on Nav Samachar also. So 3R Zero Waste के बारे में और जानते हैं शिवराज जी से. शिवराज जी मुझे ये बताइए कि what was that moment or incident or reason that you started 3R Zero Waste? What is your motivation behind? Thank you for the question. So to tell you the actual story जैसा ये हुआ है, I was in 28th of February 2020. I came back to India for a short vacation in Visakhapatnam, and that is when this COVID thing, there was like a lot of खौफ था पूरे देश में कि क्या
होने वाला है, लॉकडाउन लग जाएगा, क्या होगा। सो हम्म इसी के दौरान मुझे लगा कि एंड लकीली आई एंटर्ड इनटू आई वाज एबल टू गो टू कुवैत. So after reaching Kuwait, there was almost 6 months airport was closed. If I was not able to reach on 28th of February flight, 3rd of March से लेकर 6 महीने के लिए पूरा एयरपोर्ट क्लोज था. मतलब मैं अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता. तो शायद 3R0 वेस्ट कुछ और होता. I don't know. It might have been some real estate company. So luckily I entered there and अब lockdown hit. I was in a project where 10,000 people were working. Labor workforce was 10,000. It was one of the biggest project of the world. A refinery, a petrochemical complex and a LNG plant. तीनों की एक साथ एक कंट्री में एक प्रोजेक्ट पे होना बहुत बड़ी बात होती है. इट इज सिमिलर टू रिलायंस जामनगर. जब रिलायंस जामनगर देखते हैं आप लोग तो ये सारा चीजें एक साथ है. तो वही वाली वहां पर बना रहे थे उस प्रोजेक्ट में. सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. सो अब लॉकडाउन लग गए 3rd मार्च से एंड हम भी सबके जैसा 2 बेडरूम हाउस था हमारा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप हॉल में बिताते हो. एंड माय वाइफ वाज वर्किंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. शी वाज सेटिंग अप अ प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट. सो मैं वो पूरा सुनता था उसके बारे में. वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही थी. तो कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, क्या प्लांट होगी, कितनी कैपेसिटी की प्लांट होगी, मशीनरी कहाँ से आएगा. तो एवरीथिंग आई वाज लिसनिंग टू ऑल दिस थॉट्स ऑफ is into plastic waste recycling. So that is where first time in my life I entered into a knowledge of waste management. Okay. And since I was sitting idle, I was thinking कि अब लाइफ से नेक्स्ट क्या करना है. I was not knowing शायद ये एक वीक में लॉकडाउन बंद हो जाएगा या एक महीने में होगा, किसी को पता नहीं था उस समय. बट हाँ, तो लेकिन पूरा दिन खाली हुआ करता था. you understand that grocery is coming online, you don't go out, totally everything is locked down. So mind is totally blocked. What you can do at home is only think. और हमारे घर में टीवीज नहीं है. We are very clear, we don't use, any. So mobile is the only thing, or I am working on my laptop. So that is where the first thought came कि अब मैं अपने लाइफ में काफी कुछ अपने लिए और मेरे फैमिली के लिए किया हूँ. अब मुझे अपने something on entrepreneur and something to give back to society I have to do in the next couple of years in my life. So that is how the thought came and immediately because of plastic waste recycling के लिए मैं sustainability के बारे में सोचने लगा कि क्या हो सकता है. तब बहुत एटलीस्ट मेरा नॉर्मली मैं ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटे काम करता हूँ. तो अगर आप लॉकडाउन में हो तो और भी इसके लिए टाइम मिल जाता है. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग अ कोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम स्विट्जरलैंड. सो आई डिड अ कोर्स देयर एंड उसमें मुझे सॉलिड वेस्ट के बारे में क्या क्या डिफरेंट वेस्ट होती है उन सब के बारे में फुल क्लैरिटी आई. इनिशियली मैं भी अगर आप सर्च करोगे गूगल में वेस्ट के बारे में तो प्लास्टिक वेस्ट सबसे ऊपर आएगा. जी बिल्कुल. द रीजन प्लास्टिक इज लाइक वन ऑफ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज वेरी ह्यूज, राइट. सो आई वाज थिंकिंग कि आज भी इंडिया में जो मेरा आइडिया था, इनिशियल आइडिया कि हर घर में प्लास्टिक है. बट ऐसा कोई ब्रांड नहीं है आज इंडिया में जो कहे कि मैं रिसाइकिल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट हूँ. आज भी नहीं है. राइट. आपके पास प्लेट है, आपके पास टूथपेस्ट है, आपके बॉटल्स हैं, मेडिसिन से जार्स हैं, बट कोई भी ये नहीं बोलता प्राउडली कि आई एम मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक. सो दैट वाज माय फर्स्ट थॉट. क्योंकि मुझे गंदगी में उस समय जब आप पहली बार वेस्ट के बारे में सोच रहे हो, आप सोचते हो कि भाई वो गंदा जो काम है सब हो जाएगा, उसके बाद गए ग्रैन्यूल्स लूंगा और प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं तो क्लीन इंडस्ट्री में रहूंगा. So that was the thought, initial thought. वो अभी काफी चेंज हो गया. So but जब मैंने रिसर्च और किया इंडिया के बारे में, बिकॉज इंडिया में करना था बिजनेस, I found that India has 4,000 recyclers in plastic waste. So I didn't want to be in the crowd कि भाई बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है. So that is how I decided something मुझे हट के करना है, something futuristic करना है. And that's how after research I found that e-waste is one thing which is growing very at a rate of 12% per year on year annum across the world, and India is the third last generator of e-waste, 3.2 million tons as of 2020, and that's how I started 3R0 waste. Okay, that's really a great journey, and I must say कि मतलब
कहना तो नहीं चाहिए, पर लॉकडाउन को एक तरह से थैंक यू ही कहेंगे कि आपको ये सोचने के लिए प्रेरित किया, एंड थैंक्स टू दोज रिसर्च रिपोर्ट्स कि 3R0 वाज बोर्न। सो 3R0 जब आपने स्टार्ट किया, तो आपने जिस तरह से मुझे बताया था कि यू हैव ऑलरेडी वर्कड एंड ट्रैवल्ड एंड मेंटर्ड इन सो मेनी कंट्रीज। कमिंग बैक टू इंडिया, वाज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक? बिकॉज एक होता है ना कि आप एक रेगुलर से सेटअप में चल रहे होते हैं एंड सडनली देन यू डिसाइड कि मैं अपना एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि अभी इंडिया में नया है। पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वेस्ट मैनेजमेंट थिंग, दे आर नॉट वेरी कन्विंस्ड टू डू इट। सो वाज इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद व्हेन यू थॉट ऑफ इट? देखिए, जब मैं आया, इट वाज इन गुड़गांव, सो इनफैक्ट अगेन आई वांटेड टू डू इन माय ओन लैंड इन विशाखापट्टनम। Okay. तो मैंने वहाँ काफी कोशिश की कि अपना लैंड था तो क्या था कि कॉस्ट कम हो जाएगा, सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। Okay. तो फिर मैंने अपने लोगों को, ये जो 6 महीने थे, मार्च से लेकर जुलाई तक, जुलाई में मैंने कंपनी फॉर्म करी, बट इस 6 महीने, सो लाइक 4-5 months आई वाज वेरी फास्ट। आई ट्राइड माय बेस्ट टू रिसर्च कि मेरे लैंड में अगर करता हूँ तो क्या पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। जी। तो आफ्टर 3 months ऑफ रिसर्च आई फाउंड कि अपने लैंड में कभी भी कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट। यस, कि आपका पड़ोसी कब को आके बोल देगा कि आपकी इंडस्ट्री, आपने सपोज 2 करोड़ लगा दिया कि आपके इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही है, एंड देन द गवर्नमेंट विल कम एंड शट योर प्रोजेक्ट। सो द फर्स्ट लर्निंग इज ऑलवेज डू अ इंडस्ट्री इन अ इंडस्ट्रियल पार्क जहां पर अलाउड ही है पहले से। तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगी। सो दैट वाज वन लर्निंग। एंड फिर मैंने अपने, सिंस मेरा लैंड में नहीं हो, फिर मैंने आंध्र प्रदेश में कोशिश किया कि वहां पर मुझे मिल जाए कोई लैंड, तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहां भी मैंने काफी दौड़ भाग करी, ऑनलाइन पे की, बिकॉज आई वाज देयर, बट अगेन यू अंडरस्टैंड, कोविड था तो लोगों के रिस्पॉन्स नहीं हुआ करती। एग्री। तो फिर मैंने, मेरे वाइफ की कुछ दोस्त थे यहाँ पर गुड़गांव में, एंड वो लोग भी कुवैत में काम करते थे हमारे साथ, तो उनके रिलेशन की वजह से फिर उन्होंने मुझे मानेसर में, जहाँ मारुति की प्लांट है, वहां पर एक फैक्ट्री को रेंट पे दिलाया। तो उस वजह से मैं आ पाया गुड़गांव। सो आई वांटेड टू शेयर दैट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई आई केम टू गुड़गांव। देन कमिंग टू गुड़गांव में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सोच भी लिया, बट द थॉट प्रोसेस चेंजिंग, बिकॉज जो ये माइंडसेट चेंज है वेस्ट को लेकर, सोच बदलना, ये मेरा एक की एस्पेक्ट रहा। इनोवेशन जो भी मैं अभी करना चाह रहा हूँ, अभी भी 3 साल में हो नहीं पाया, लेकिन डेनमार्क टुक 100 years टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सिटीजन्स की वेस्ट को कैसे देखते हैं। राइट। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 2021 में हम लोग लंदन थोड़ा टाइम के लिए गए थे, मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई थी। तो हम लोग एक एयरबीएनबी में रहते थे कुछ 10-15 दिन। तो एक लेडी थी जिसका एयरबीएनबी था, शी वाज लाइक 70 years और 67 years ओल्ड। अकेली लड़की, पूरी घर है, तो उन्होंने अपना 2 रूम हमें एयरबीएनबी पे दिया। सो आई वाज अमेज्ड टू सी कि उनका किचन में एक अगर पानी की बोतल है, रिसाइकलिंग, मतलब बताना चाहता हूँ कि एक लंदन में एक 67 years की लेडी एक बोतल, पानी की बोतल की रिसाइकलिंग कैसे करती है। हमें लगेगा कि एक प्लास्टिक बोतल है, एक हमने डस्टबिन में अलग से डाल दिया, ब्लू कलर में रिसाइकलिंग हो गई, राइट? इट इज नॉट ट्रू। Right. There are 3 different types of plastic in a plastic bottle. मेरे पास नहीं है, मैं जल्दी पानी बॉटल पीता नहीं हूँ। सो एक होता है कैप, अगर बिस्लरी का बॉटल अगर ले गए तो ऊपर का जो कैप है वो HDPE प्लास्टिक है। जो बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, वो PET प्लास्टिक है जी। और जो एक कवर लगी रहती है जहाँ बिस्लरी और वो सब चीज लिखा रहता है, that is PVC. So they would open, the lady would open the cap, put it separately. The bottle part she will crush it and put it separately, and then the PVC laminate she will put it separately. So this took like London, बाकी काफी टाइम रहता है और लंदन में सब लोग नहीं करते हैं ऐसे, but there are people who have changed their lifestyle. अब इंडिया में हमारा जो मुहिम है यही है कि ये चीजें हम अपने इंडिया में ला पाए और लोगों की सोच बदल पाए, जिसके वजह से हम काफी इनोवेशंस करने वाले हैं फ्यूचर में, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा।
पॉइंट एंड ग्लैड यू शेयर्ड। मतलब आई एम वेरी श्योर काफी लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि एक मिनरल बॉटल की मतलब जो बॉटल है उसमें हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने डिस्पोज ऑफ वहां लिखा हुआ है क्रश करके फेंक दे, तो ऐसा नहीं है। उसमें 3 तरह का प्लास्टिक है, उसको 3 तरह की रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ओनली इफ द रिसाइकलिंग इज पॉसिबल, बिकॉज हर प्लास्टिक भी रिसाइकलेबल नहीं होता है। उसके ऊपर जो क्लिंग फिल्म की तरह प्लास्टिक है, जो पीवीसी आप बात कर रहे हैं, जो उसका ढक्कन है, सो एवरीथिंग इज नॉट रिसाइकलेबल। एंड ग्लैड यू शेयर्ड दिस एग्जांपल, बिकॉज मैंने भी कुछ दिनों पहले आई एम नॉट श्योर वो कितना फ्रूटफुल हो पाया नहीं, कि डेनमार्क ने एक कुछ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंडिया में राजस्थान के साथ कुछ टाई अप किया था। देयर वाज सम न्यूज लॉन्ग बैक, सो आई एम नॉट श्योर इज इट मतलब डेनमार्क की हर चीज के साथ कंसर्न थी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी जिस तरह से आपने प्रॉपर्ली एग्जांपल दिया। बट हाँ, साल लगते हैं, टाइम लगता है लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि वेस्ट क्यों है, किस तरह से हमें उसको मैनेज करना है, वो किस तरह से हमें हार्म करना है। एंड सर्टेनली वी शुड ऑल नो दैट एनवायरनमेंट इज नॉट अ ट्रैश कैन कि हम चीजों को सिर्फ फेंकते जा रहे हैं। बिकॉज मैं अपने हर एपिसोड में ये चीज जरूर रिपीट करती हूँ कि पीपल आर सो नेग्लिजिबल कि कचरा है डब्बे में डाला, एक वो काली रंग की पॉलिथीन है उसमें बंद किया, दरवाजे के बाहर रख दिया, उनकी ड्यूटी वहां खत्म हो जाती है। नो प्लीज लिसनर्स, हमारी ड्यूटी वहां खत्म नहीं होती है। सेग्रीगेट करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, वो वेस्ट जहां जा रहा है वो लैंडफिल्स में उसका क्या होगा ये सोचना, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। सिर्फ चीज को खरीद कर ले आना एंड उस पॉलिथीन को फेंक देना, ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट को सोल्यूशन नहीं देने वाला है। एंड आपने जैसे भी बात की, या आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट लिसनर्स कि 3R Zero Waste इज based in IMT मानेसर गुरुग्राम, एंड इनकी साइट का पूरा नाम है जीरो एज इन न्यूमरल zerowaste.co.in। एंड आप इन्हें ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी पा सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द जीरो वेस्ट इनिशिएटिव एंड देयर साइट। सो जहां हम बात कर रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट की, आपने बात की प्लास्टिक की, तो मैंने आपकी साइट पे पढ़ा था कि यू ट्रेड ऑन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स एंड वर्जिन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स। तो ये क्या होते हैं शिवराव जी? लाइक आई एम रियली सॉरी बट मुझे ही नहीं पता कि व्हेन यू ट्रेड इन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, मतलब हाउ आर दे आइडेंटिफाइड इन गार्बेज एंड व्हाट हैपेंस टू देम? बिकॉज हमने अभी जैसे एक बॉटल की बात की, तो वैसे ग्रैन्यूल्स का क्या होता है? लाइक इफ यू ट्रेड इन इट, तो व्हाट आर यू डूइंग विद इट? राइट, सो जैसे अगेन यू नो ई वेस्ट का प्लांट तो मैंने लगा लिया, बट सिंस मटेरियल की स्केर्सिटी है मार्केट में, राइट, मुझे मटेरियल मिलता नहीं है, तो मेरी प्लांट की कैपेसिटी है 500 मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट एज पर अप्रूव्ड फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Okay. मेरी जो पहला साल में सिर्फ 1 टन मिला, ओनली 1 टन ऑफ ई वेस्ट। सो यू कैन थिंक कि मैं अपना दुकान बंद करके चले जाना चाहिए। जब आपकी कैपेसिटी 500 टन है, आप हर दिन 1 टन करना चाहिए, आपने 1 साल में 1 टन किया, तो मतलब बिजनेस नहीं चल रहा। सो व्हाट आई डिड इज आई टुक एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मानेसर में हूँ जहाँ पर 4000 इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता होगा, विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल जी। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज जनरेटेड एवरी डे, व्हेयरएज ई वेस्ट इज जनरेटेड वंस अ ईयर। ओके, राइट। सो मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अभी इंडस्ट्री में भी लोग कबाड़ी वाले को यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फॉर्मल, कोई कबाड़ी वाला है ही नहीं यहाँ मार्केट में। सारे यू नो मतलब कबाड़ी वाला यू नो इन टर्म्स ऑफ यू नो नॉट, सम ऑफ देम डोंट हैव इवन जीएसटी, बट सो क्लाइंट डोंट हैव अ चॉइस कि भाई हमें तो वेस्ट निकालना है हर दिन, तो जो आता है उसको दे दो। जैसे अभी रेसिडेंस में भी यही हो रहा है, मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटीज में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपका अगर वॉशिंग मशीन खराब हुआ, यू हैव टू कॉल कबाड़ी, आप डोर के बाहर रख दोगे या मैक्सिमम आपका सिक्योरिटी नीचे लाके रख देगा, कोई कबाड़ी वाला आके ले जाएगा, कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम वाज हैपनिंग विद द B2B इंडस्ट्री। सो आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि अब मुझे इंडस्ट्रियल वेस्ट पे इमीडिएटली पहले फोकस करना चाहिए, जिससे मेरा एटलीस्ट जो मेरा रेवेन्यू है चलने लगे, जो मेरा एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए का महीने का, वो तो निकले। नहीं तो हर महीने मुझे अदर देन कैपेक्स हर महीने भी मुझे डालना पड़ रहा था पहले 6 से 1 साल के लिए। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट में मैंने एंटर कर दिया, पिवट किया थोड़ा से, इवन दो ई वेस्ट इज माई कोर बिजनेस, I pivoted into industrial waste and that was my savior. And I also became during that time, कोविड के टाइम में जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के, अरुण पौड़ी साहब, he expired during the COVID, so he
लाइक्ड मी वेरी मच, बिकॉज उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली जो मुझे आज भी बहुत पसंद है कि शिव, मैंने इस एसोसिएशन में ऑलमोस्ट 30 साल से हूँ एंड मैं प्रेसिडेंट हूँ काफ़ी टाइम से। यहाँ पर हर आदमी आता है पैसे कमाने, इंडस्ट्री कोई भी लगाता है पैसे कमाने। यू आर द फर्स्ट वन हु हैज कम टू सेव द एनवायरनमेंट while making money. So I want to make you board of director of environment and sustainability. So that is how I became the board of director. और उसके वजह से फिर मुझे पूरे 4000 CEO CMDs को एक ओपनिंग मिल गई, मेरी आवाज सुनाई देता था, एक कनेक्शन बन गया, और उस वजह से मैं आज 3 साल में मैं सस्टेन कर पाया। नहीं तो मैं जनरली स्टार्टअप्स को बोलता हूँ, ये जो हमारी इंडस्ट्री है एक स्टार्टअप के लिए नहीं, unless until you are very very innovative. So मैं innovative नहीं था, तो I was a normal, normal journey, normal startup, but मेरे केस में कुछ ऐसे नेटवर्किंग अच्छी बन गई जिसके वजह से मैं सरवाइव कर पाया। Great, and that's really a great journey. And literally, मतलब शिवराज जी, मैं भी आपको कुडोज इसीलिए कहना चाहूंगी कि when you started with 3R zero waste, आप एक ऐसी दुनिया को चाह रहे हैं जहां पर there is zero waste, and you, मतलब आपकी साइट पे भी मैंने पढ़ा था that you have a mission to set up integrated recycling units across land masses to ensure circular economy with sustainability in every mile. तो आप इस थॉट के साथ जब आगे बढ़ते हैं, जब इनोवेशन को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंटल कंसर्न, सस्टेनेबिलिटी को लेकर चलते हैं, तो आई एम श्योर कि आप एक पब्लिक चीज को, एक कम्युनिटी लेवल को लेकर चल रहे हैं, एंड यू आर नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रॉफिट। ये बहुत ही क्लियरली आपकी साइट से पता चलता है। साइट के बारे में बात करूंगी तो मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी, शिवराज जी की साइट का नाम है zerowaste.co.in, और मुझे इनकी साइट की एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, वो था इनका माउस पॉइंटर पे एरो की जगह देयर इज 3R रिटन ऑन इट विद अ स्मॉल लीड, जो कि आपको बार बार ध्यान में दिलाता है कि ये जो 3Rs होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के, ये इतने मुश्किल नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट ना कर सके। तो एक ऐसी सस्टेनेबिलिटी साइट पर आकर जब मुझे ये 3R का माउस पॉइंटर दिखा, तो इसी से आपकी एक छोटी छोटी सी चीज के बारे में शिवराज जी पता लगता है कि आप कैसे हर एक छोटी सी चीज को भी माइन्यूटली ध्यान में रख रहे हैं और अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुडोज टू यू एंड 3R zero waste. I really wish you and your team all the best. So आगे बात करते हैं कि 3R zero waste is providing lot of services, guys. Let me tell you, waste management में जैसे कि इन्होंने भी बताया, हम बात कर रहे थे कि he has already started with the e-waste management system. E-waste की जब हम बात करते हैं, there is a increased use of electrical and electronic products which has brought much ease in going about the day-to-day chores, but it has also given rise to major problem in the form of piling electronic waste which is called e-waste. जैसे कि इन्होंने कहा कि हाँ, बाकी का वेस्ट में भी डेली जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट साल में एक बार, लेकिन वो साल में एक बार आप सोचिए हर घर के हर इंडिविजुअल का निकल रहा है। सो ई वेस्ट क्या होता है? इट्स एनी पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल और एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कहा, इट कैन बी डिस्कार्डेड, स्मॉल और लार्ज आपके होम अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज, कोई छोटा रेडियो, मोबाइल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इलेक्ट्रिक स्टव्स, इट कैन बी वैक्यूम क्लीनर्स, कुछ भी हो सकता है। आईटी गैजेट्स की तो पूछो ही मत, बिकॉज ऑल दीज कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स सच एज लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, ये तो मतलब आई थिंक piled up है, because every month, every 15 days there is a new phone which is coming into the market. So last year alone, the data says that more than 5.3 billion smartphones were thrown away. And according to the Waste Electrical and Electronic Equipment, which is WEEE Forum, overall, a mere 17% of the total e-waste is properly dealt with. तो आप सोचिए कि e-waste भी properly manage नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ 17% ही कलेक्ट रिसाइकल हो रहा है, तो बाकी सारा का सारा सिर्फ लैंडफिल में जाकर गिर रहा है। एंड सोचिए कि which is मतलब ई-वेस्ट के बारे में तो आई थिंक वी आर वेरी लेस स्पोकन अबाउट, लोग बात ही नहीं करते बिकॉज वो उस कंसर्न की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, which is a major issue, especially given its impact on health, both on humans and certainly the earth. तो आप सोचिए कि वेस्ट which ends up in landfills, उसका मेल्टिंग होना, उसका बर्निंग होना, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई वायर है, कोई गैजेट है, it leads to only and only toxic fumes that can be a major cause of pollution and contamination. So बहुत सी companies of course e-waste के
मैनेजमेंट के लिए काम कर रही हैं, दे आर टेकिंग इनिशिएटिव। इसी तरह का एक एग्जांपल मैंने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का भी पढ़ा था, who have invested crores in copper and e-waste recycling facility। बट बात वही आ जाती है कि कितनी अवेयरनेस है ई वेस्ट रिसाइकलिंग को लेकर। तो जब हम बात कर रहे हैं आपके 3R0 वेस्ट की, जिसमें कि आपकी एक सर्विस ई वेस्ट मैनेजमेंट है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि when you started this plant and when you started the e-waste thing, how difficult was it to manage and explain people? Because वही बात है, जैसे मैंने कहा कि हर महीने एक फोन नया आ रहा है, हर घर में कोई ना कोई नया गैजेट चला आ रहा है। How do you मतलब try on your level, और how do you try and convince and spread the awareness कि हमें इसको reduce कैसे करना चाहिए? What is the like, how are you recycling? How are you managing it? राइट। तो देखिए, अभी आपके दर्शकों को भी थोड़ा सा, जैसे आपको मैंने प्लास्टिक के बारे में बताया, उसी तरह से ई वेस्ट के बारे में अगर बताऊं तो जो हमारी पॉलिसी ई वेस्ट मैनेजमेंट की 2016 में गवर्नमेंट ने इशू किया। बट बहुत लोगों को आज हमारी इस चैनल के थ्रू जो भी लोग सुन रहे हैं, आई वुड से 98% पीपल माइट हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। जी बिल्कुल। कि EWM पॉलिसी 2016 वाज इशूड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, ऐसे बोलते हैं ना, धारा नंबर 324 जो फिल्मों में सुनते हैं, ये उस तरह के धारा है जिसको लोग गवर्नमेंट बना तो दिया है लेकिन लोगों को पता ही नहीं। राइट। इसमें पॉलिसीज में भी व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख रहे हैं। एज अ कंज्यूमर हमारा क्या रोल है, एज अ शॉपकीपर हमारा क्या रोल है, एज अ बिजनेस हमारा क्या रोल है, तो वो भी डेफिनेशन उस पॉलिसी में एग्जिस्टिंग है। उसके बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट लाई थी 2000, रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई है। सो पुराने पॉलिसी में 2 कैटेगरी के ई वेस्ट होते थे। एक है कोड ITEW और एक है CEEW। सो ITEW इज नथिंग बट IT इक्विपमेंट वेस्ट। ओके। सो एनीथिंग, प्रिंटर्स, कॉपियर्स, लैपटॉप्स, PCs, all this under ITEW category. And then CEW is consumer electronics. Okay. So ये 2 कैटेगरी हुआ करती थी, जिसमें से ITE में ही फिर अगर ITEW 1 से लेकर 7 तक एंड CEW 1 से लेकर 5-6 तक। सो इसका जो है इट वाज 17 आइटम्स। ओके। अभी जो नया पॉलिसी आया है उसमें अभी 7 कैटेगरीज हो गए, 2 से इट हैज बिकम 7 कैटेगरी एंड आउट ऑफ 17 items it has become 109 items. Okay. So ये 7 कैटेगरी क्या है? ITEW हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके बाद लार्ज किचन अप्लायंसेस को उन्होंने अलग कर दिया। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, सोलर पैनल्स, टॉयज एंड देन इंस्ट्रूमेंट्स, सभी भी इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। तो इसलिए उन्होंने अभी दायरा को बढ़ा दिया इस पॉलिसी में, और सारे जो भी प्रोड्यूसर्स है उनको भी बोला गया कि आप जब भी मैन्युफैक्चर करते हो श्योर करो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो इस दुनिया में लाने के लिए आपकी है, तो उसकी रिसाइकलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। ये इन्होंने एक नया पॉलिसी डाला है, इट्स कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। जी। सो इन्होंने स्टार्ट किया ई वेस्ट का, जिसके वजह से अभी जो है जागरूकता बढ़ रही है लोगों में। वो कोई पता चल गया है कि अगर सैमसंग का फोन है तो उसको रिसाइकलिंग के लिए क्या करना चाहिए। वो लिखते हैं सैमसंग भी, आज अपने अगर खोलोगे तो लिखा रहेगा, बट बहुत माइन्यूट में लिखा रहेगा, लोगों को टाइम ही नहीं पड़ता। सो आई टॉक टू द ब्रांड्स कि भाई अगर शिवराव जैसी एक छोटी सी कंपनी 8,37,510 पीपल को अगर अवेयरनेस कर पाया है आज तक, और आपके आज वो पता हो जाएगा, तो और आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, अगर हमें कहीं भी फॉलो करेंगे तो उनका भी डेटा हमारे में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम ये कर पा रहे हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स को बहुत कुछ करना चाहिए। लोगों को हर एक जागरूक होना चाहिए कि ये 3 प्लास्टिक अलग होना चाहिए बॉटल का। हर एक मोबाइल है तो इसमें कितने प्रीशियस अर्थ मेटल्स है ये पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो मार्केट में नहीं है। तो हम अपने तरफ से जितना भी कर पा रहे हैं, जो भी मेरे को कुछ ब्रांड्स ने सपोर्ट किया है उनके माध्यम से हम जाके, अगर हमारी आप वेबसाइट देखोगे तो मार्केट में लगाते हैं हम अपने स्टॉल्स, लोगों को जागरूक करते हैं, RWAs में लगाते हैं, इंडस्ट्री में जाके हम इसकी बात करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अब लकीली बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां भी मैं जाके इस कैंपेन को चला रहा हूं, और जिसके वजह से काफ़ी प्रोत्साहित मिलती है कि
लोगों से हम मिले और उनका भी हमें फ्यूचर में सपोर्ट मिले। Okay, that's really great and thanks for sharing about the EPR and ये जो आपने रूल्स बताया, बिकॉज लोग सच में इससे जागरूक नहीं हैं। लोगों को नहीं पता है कि EPR ई वेस्ट इन इंडिया इस तरह की मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिसाइकलर और रिफर्बिशर की कैटेगरीज के अंडर आते हैं। उसमें कई आइटम्स हैं जो कि लिस्टेड हैं। प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी रहती है इसके लिए, मैन्युफैक्चरर की रहती है, रिफर्बिशर की रहती है, इवन रिसाइकलर की भी रहती है कि अगर वो उस प्रोसेस में उस चीज को ले रहे हैं तो उसके रेसिड्यू का क्या होगा, रिसाइकलर किस तरह से उसको सेग्रीगेट करेगा, किस तरह से उसकी अवेयरनेस फैलाएगा, एज वेल एज बल्क कंज्यूमर्स की भी रहती है। सो ऐसा नहीं है, अगेन आई वुड लाइक टू से कि हम सब बोल देते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी निभा रही है, बट हाँ ये अवेयरनेस और आनी बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एलईडीज है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, मर्क्यूरी लैम्प्स हैं, एसीज है, इन सब की चीजें या आईटी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपने बात की थी, प्रिंटर्स हैं, कॉपियर्स है, टेलीफोन्स है, सेलफोन्स है, इस सब के बारे में अगर हम ढंग से जाने या पढ़ें तो वी विल गेट टू नो कि देयर हैव बीन रूल्स लेड आउट। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से आपने कहा कि धारा सो एंड सो, इस तरह से जैसे हम एसडीजीज की भी बात करते हैं, इन रूल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि हम इस ई वेस्ट को कैसे मैनेज करें, बिकॉज इट इज लीडिंग टू हजार्डस सब्सटेंसेस। वो जो वायर है उसमें से हमें नहीं पता कि मर्क्यूरी, लीड, पॉलीकार्बोनेटेड फिनाइल्स, कौन कौन से क्रोमियम्स, एथर्स, कौन कौन से केमिकल्स उसमें से निकल रहे हैं, which can be harmful for not only our health but certainly for the environment, because वो अर्थ को सिर्फ और सिर्फ क्लॉग कर रहे हैं। एंड ग्लैड यू told all this, शिवराज, बिकॉज लोगों को सच में नहीं पता कि ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम एक घर से वायर को फेंक देते हैं, एक मोबाइल को सिर्फ आउट कर देते हैं, या जिस तरह से आपने पहले कहा कि एक वॉशिंग मशीन है, हमें नहीं पता क्या करना है, हम घर के बाहर जाकर उसको रख देते हैं, कबाड़ी वाले को बोलते हैं ले जा, उसके बाद उसका क्या होता है, पीपल आर जस्ट नॉट अवेयर। वी नीड टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस मोर एंड मोर टू मेक पीपल नो कि हाँ इसको मैनेज किया जा सकता है। नॉट ओनली द कबाड़ी वाला, बट देयर आर रिसाइकलर्स, देयर आर एजेंसीज, देयर आर वेस्ट मैनेजमेंट पीपल हु कैन हेल्प यू tackle them properly rather than just piling them in the landfill or the earth. So great. And again आपने जैसे अभी कहा कि आपके services and solutions के बारे में लोग आपकी वेबसाइट से जान सकते हैं, तो guys I have again told you that their website name is zerowaste.co.in and you can contact him on email which is info@zerowaste.co.in. बाकी आप इनकी साइट देखिए, you will get to know their vision, mission, their services, their solution and what all things they have been doing since last 3-4 years in working towards the waste management, because they have been running more than 30-40 projects. They have already collected more than 120,000 kgs of cumulative waste which they have recycled and put to a better use and helping the earth breathe more properly. सो थैंक यू शिवराज जी कि आपने इस तरह से हमें ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया। एंड गाइस मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ई वेस्ट जो होता है, इट कैन बी आपकी टेलीविजन के पास, इट कैन बी एलसीडी, इट कैन बी मॉनिटर्स, इट कैन बी स्मार्ट डिस्प्लेस, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, वायर्स जो होती हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हो सकते हैं, पुराने पड़े हुए आपके डीवीडी, वीसीआर, रेडियो, वीडियो स्क्रीन्स हो सकते हैं, इट कैन बी anything which is containing lot of chemicals। and आप समझे ना समझे, लेकिन modern electronics they can be safe to use but they contain some form of toxic materials which can include beryllium, cadmium, mercury, lead, which pose a serious environmental risk to our soil, water, air and wildlife। so इस toxicity को दूर रखने के लिए हमें इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसकी अवेयरनेस ना होने के कारण कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत हमारे हाथों हो जाता है, या कोई इंसान कुछ गलत उस चीज को समझ लेता है। बिकॉज जब छोटा सा बच्चा है, वो एक वायर को डस्टबिन में फेंक रहा है, उसे नहीं पता है कि उस वायर को, उस टैबलेट को, उस गैजेट को बाहर फेंकने से क्या होगा। तो यही अवेयरनेस हमें खुद को भी रखनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी स्प्रेड करनी है। सो वंस अगेन थैंक यू शिवराज जी कि आपने ये चीज शेयर की ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में एंड रूल्स के बारे में, बिकॉज लोग सच में इसके बारे में जानते नहीं हैं। सो मुझे ये बताइए कि जब आपने ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचा था,
तो ऐसा होता है कि आपकी फैक्ट्री में या आपकी कंपनी में ई वेस्ट लाइक लोग भिजवाते भी हैं, लाइक हाउ डज इट हैपन, या आप प्रोक्योर ही खुद करते हैं इसको इंडस्ट्री से, जैसे कि आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बताया? राइट, सो पैरेलली जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने स्टार्ट किया। अभी फर्स्ट ईयर मेरा ई वेस्ट 1 टन था, सेकेंड ईयर में बिकेम 13 टन्स, एंड दिस ईयर वी वर क्लोज टू 85 टन्स द थर्ड ईयर। एंड ये जो साल की मेरी टारगेट है कि मैं 500 टन के आसपास पहुंच जाऊं। सो इसमें एक तो डेफिनेटली है क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, एंड यू नो वी हैव टू पे फॉर द इंडस्ट्रीज बिकॉज वहाँ बल्क में निकलता है। इवन तो छोटी सी इंडस्ट्री है तो 50 kg 100 kg तो नॉर्मल है, और बड़ी इंडस्ट्री है तो इट माइट बी इन थाउजेंड्स ऑफ केजीज। बट जो आपने पूछा कि यू नो कैसे आता है, देयर आर पीपल इन इंडिया टुडे कि वो लोग यू नो आके दे के भी जाते हैं। आई रिमेम्बर नाइस कपल, द हस्बैंड इज वर्किंग फॉर मारुति and the wife is also very sustainable. They run a hotel in Ladakh. उनके पास एक सस्टेनेबल होटल है। तो मतलब जो लोग सोचते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, इससे लोग हैं इंडिया में, और वो लोग मुझे ढूंढ के आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं ढूंढ के मेरे पास लेके भी आते हैं। सो देयर आर पीपल, एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर आई वुड लाइक टू, एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, हर नेम इज डॉक्टर नितिका। उन्होंने 1.5 साल पहले मुझे कॉल किया और बोला, शिव मैं अपना वेस्ट सेग्रीगेट करना चाहता हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं अकेला एक लेडी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, पर मैं अपना सेग्रीगेट कर लेती हूँ, मुझे दिखता है लेकिन नीचे जाके वो सब कुछ एक साथ हो जा रहा है, तो मेरा मोटिवेशन टूट रहा है। ऐसे लोग हैं, 2% है, 90 जैसे मैं बोलता हूँ 98% लिंक करते हैं, पर ये जो 2% लोग हैं, ये लोग भी कम होते जा रहे हैं, बिकॉज ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो उनको अवेयरनेस है, बट बिकॉज देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर देयर मोटिवेशन इज डाइंग। वो लोग बोल रहे हैं अब मैं क्यों करूं, मैं अपना पेन क्यों लूं, मैं अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ। तो उस कॉल से मुझे याद है, मैंने उनको बोला मैम कोई बात नहीं, आपका अकेले घर पे भी मैं गाड़ी भेजूंगा और करेक्ट करूंगा हर वीक। तो उससे स्टार्ट हुआ और 18 महीने हो गए, आज हमारे पास 950 घर हैं ऐसे जो लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं गुड़गांव में, और हम आइदर वीकली और बाई वीकली जाके कलेक्ट कर रहे हैं। सो पीपल आर देयर एंड वी वांट मोर पीपल की ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे जैसे कंपनी अब हर शहर में है, आपको उनको ढूंढना है, और इस माध्यम के थ्रू भी हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे कनेक्शंस हैं काफ़ी हर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, जहां अच्छे लोग, अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं इस फील्ड में, और उनको सपोर्ट की जरूरत है। आपको उनको जरूरत है, वो आपको जरूरत है। सो लेट अस कोलैबोरेट and create a synergy in the cleaning India. पॉइंट बिल्कुल सही कहा आपने, एंड ग्लैड एंड कुडोस टू 3R0 वेस्ट कि आप इस तरह से मतलब आपने एक के लिए भी वेस्ट कलेक्ट करने के लिए हिचकिचाया नहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा, भले ये परसेंटेज कम है, आई रियली विश कि ये परसेंटेज बढ़े, जो ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो, ज्यादा से ज्यादा सेग्रीगेशन करना चाहे, ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि ये वेस्ट सिर्फ सरकार का नहीं है, वेस्ट सिर्फ सोसाइटी का नहीं है, ये वेस्ट मेरा है और ये मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज एट टाइम्स लोग को ये लगता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बट हाँ, आपकी एक छोटी सी स्टेप, आपका एक छोटा सा कदम उस वेस्ट को कम करने के पीछे भी बहुत ज्यादा साथ निभा सकता है। एंड शिवराज जी, मतलब आपने अभी जब मुझे ये बताया ना कि आपका 1 साल पहले 1 टन था, देन बढ़ा, मुझे सुन के कहीं ना कहीं बुरा भी लगा कि ये वेस्ट बढ़ रहा है जबकि हमें इसे कम करना है। सो लिसनर्स, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर में कोई चीज लाते हैं, प्लीज उससे लाने से पहले 10 बार सोचिए, क्या आपको सच में उसकी जरूरत है, या आप उसे सिर्फ लाना है इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि पुरानी चीज को आप सिर्फ उस डस्टबिन में डाल सके और उसके बाद भूल जाएं कि वो कैसे और कहाँ ट्रैवल हो रहा है। बिकॉज आप नहीं समझ रहे हैं कि जब ये कचरे के ढेरों में औरतें, मर्द, बच्चे जो वहां पर उस कचरे को इकट्ठा करने जाते हैं, वो किस तरह के हजार्डस चीजों से गुजर रहे हैं, बिकॉज उनको भी नहीं पता है उस वेस्ट में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस निकल के आएगा। मेरे को मैंने पिछले महीने ही एक डॉक्टर आरती जी है, उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो यही बता रही थी कि मेरे पास मैक्सिमम कंप्लेंट्स ये आती हैं, लोग कचरे में कांच,
ब्लेड, ऐसी चीजें भी खुली फेंक देते हैं। दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड कि जो कचरा इकट्ठा या सेग्रीगेट कर रहा है उससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, और कितने ही छोटे छोटे बच्चे इंडिया में इस काम में लगे हुए हैं जो कि कचरे में से ढूंढ रहे हैं। कोई कीले ढूंढ रहा है, कोई वायर्स ढूंढ रहा है, एंड लैंडफिल्स भरे पड़े हैं दिल्ली के आसपास का। तो आई वुड लाइक, मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, एंड जब छोटी थी तो के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, लैंडफिल्स के बारे में। बढ़ते 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 व्हेन आई केम बैक आफ्टर 16 years बैक टू दिल्ली, आई फेल्ट सो सैड टू सी कि 4 से 5 ऐसे बड़े बड़े कचरे के ढेर हो गए हैं जिनकी मैनेजमेंट इज अ बिग बिग थ्रेट टू द गवर्नमेंट, बिकॉज उसमें से अलग अलग फ्यूम्स निकल रही हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकल रहे हैं। आजू बाजू में रहने वाली जितनी भी कॉलोनीज है, दे आर गेटिंग अफेक्टेड, द वाटर इज गेटिंग अफेक्टेड। तो गाइस, मेरी बार बार आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है, वेस्ट को सिर्फ वेस्ट ना समझे, अपने लेवल पे भी उसे मैनेज करने की प्लीज कोशिश करें। ओके शिव जी, जब आपसे मेरी पहली बार बात हुई थी तो आपने मुझे ई वेस्ट को लेकर अपना एक किस्सा था जो मुझे अभी भी याद आता है, एंड आई वाज रियली मूव्ड बाय दैट इंसिडेंट। वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर इट विद माय लिसनर्स, बिकॉज़ व्हेन यू मेट अ 8-year-old गर्ल समवेयर, मैं वो जरूर सुनना चाहूंगी। एब्सोल्युटली। सो उससे पहले मैं दर्शकों को जैसे आपको बोला, मैं आज भी एक अवेयरनेस दे रहा हूँ, राइट, आपको, बट दिस इज अ ऑडियो अवेयरनेस। तो मेरे अवेयरनेस में एक स्लाइड है जो फिजिकली देता हूँ प्रेजेंटेशन, तो मैं दर्शकों को और आपको दिखाना चाहता हूँ वो दृश्य, सो दैट उसके बाद ये स्टोरी बताऊंगा आपको। तो मेरी लास्ट स्लाइड है जिसमें ये कहता है कि एक अर्थी शमशान में एक जल रही है, और एक साइड में एक जल रहा है, और एक साइड में एक लंबा सा शमशान है जहाँ कंटिन्यूअस लाशें जल रही हैं, जैसे आप बनारस में अगर देखते हो। तो दैट इज माय स्लाइड, एंड उसके बाद एक एनिमेशन आएगा उस बड़े वाले पिक्चर पे जहाँ पर काफी लोग की जल रही है, और उसमें लिखा होगा 500+ डेथ्स। So the thing is, in India we have somewhere between 500 to 5,000 deaths because of e-waste. ना ही इसकी कोई स्टोरी है, ना ही लोगों को पता है कि कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए मैं बताऊं, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, वो मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2020, जब मेरी लास्ट में मेरी आइडिया चेंज हुई प्लास्टिक से ई वेस्ट। तो ये क्यों हुई कि जब मैं बातें करता था सिक्किम, गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, कुंडला, सूरत, हर जगह मैंने बात करी कि ई वेस्ट का क्या होता है। जो छोटे कबाड़ी वाले होते हैं, और छोटे कबाड़ी वाले एक बड़े कबाड़ी वाले को बेचता है। हर सिटी में 1-2 बड़े कबाड़ी वाले होंगे, कोई बड़ा सिटी होगा तो 10 बड़ी कबाड़ी वाले। वो लोग क्या करते, तो मुझे पता चला वो सारा ई वेस्ट जो बचे, छोटे छोटे पार्ट, आयरन के पार्ट, मिक्सर के पार्ट, जो कोई नहीं लेगा, जो घर पे टूट जाता है, उसका मिक्सर बन नहीं सकता फिर से, राइट, वो मोटर हो गई, वो क्या होता है। तो वो बोलते हैं, हमारे को तो कॉल आता है दिल्ली से कि भाई एक ट्रक भेज दो। जब एक ट्रक हो जाता है भेज देते हैं 10 रुपए के। ओके, उनके लिए वो दिल्ली से कॉल, दिल्ली का बंदा पहले पेमेंट मिल जाता है, गाड़ी का भी वही अरेंज करता है, गाड़ी में पेमेंट आ गई, मेरा काम खत्म। लेकिन जब मैंने और रिसर्च किया, वो क्या होता है, दिल्ली आता है दिल्ली, लेकिन वो जाता है एक्चुअली गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद के बेल्ट में। ओके, जहाँ गाँवों में, हर एक छोटे छोटे गाँवों में लोग इसको डिसमेंटल कर रहे हैं अनएथिकल वे, और यही लोग मर रहे हैं जी। सो ये स्टोरी में आज से 3 महीने तक यही वाला मेरा स्लाइड चलते रहता है और बताते रहता हूँ। तो ये जब मैं रिसेंटली एक तेलंगाना गवर्नमेंट की इवेंट थी, तो मिस्टर सिन्हा है, ही इज एक्स CEO ऑफ नैस्कॉम फाउंडेशन, जिन्होंने एक ग्रीन ई बोल के एक मिनिस्ट्री ऑफ IT का 5 साल का प्रोजेक्ट चलाया था अवेयरनेस के, वाज फ्रॉम 2012 टू 2017। काफी बड़ा प्रोग्राम था। आज भी दर्शक उस वेबसाइट में जा सकते हैं, ई बोल के वेबसाइट है, and if you go you will get lot of data, lot of statistics, what happened in that program, कितने इवेंट्स हुए थे, कितने लोगों को जोड़ा गया इसमें। सो उसी दौरान सर ने, सिन्हा साहब ने मुझे उस इवेंट में बताया, शिव, कि मैं उस इवेंट के दौरान काफी जगह जाता था, काफी जगह इवेंट्स होती थी, एंड ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, नैस्कॉम फाउंडेशन की एक CEO, यू कैन अंडरस्टैंड, बट ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ई वेस्ट। सो उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद
जो मेरी स्टोरी की लिंक बन रही थी वहाँ पर। जी जी। तो उन्होंने बोला कि मुरादाबाद में गया था और मुझे पता था ये इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ से गोल्ड निकालने के लिए दे आर यूजिंग पोटेशियम साइनाइड बिकॉज एंड दैट इज द फैक्ट इट सीम्स कि गोल्ड को रिफाइन करने के लिए दिस इज द ओनली केमिकल एज ऑफ नाउ। हो सकता है कुछ नया इनोवेशन हो गया हो मार्केट जी में, जी। बट दिस इज अ केमिकल इजीली अवेलेबल। एक इनफॉर्मल सेक्टर को क्या है, हो सकता है कि देर इज सम वेरी हाई केमिकल अवेलेबल बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इनफॉर्मल सेक्टर यूज ही नहीं कर पाए, राइट। बट पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो आप लोग अगर हमारे काफी दर्शक होंगे जो पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे भगवान के ऊपर, तो एक प्रसाद में एक बताशा एक यूज होती है जी, बताशा सफेद यूज रंग होती का। है, जी सफेद रंग का। तो जी। पोटेशियम साइनाइड भी बताशा जैसा होता है। मुझे भी नहीं पता, आई कैन नॉट विजुअलाइज इट, बट सर ने बताया कि एक बच्ची, जब वो रिसर्च कर रहे थे, एक छोटी सी बच्ची 5 साल की उस अंदर आ गई फैसिलिटी के जहां उनके पापा और सब प्रोसेस कर रहे थे, और उस बतासे को एक मिठाई समझ के खा लिया। ओके। एंड देन इन 5 seconds दैट गर्ल वाज डेड। सो आई वाज एबल टू कोरिलेट कि ये जो मैं 500 से 5000 लोगों की डेथ की एक कहानी बता रहा था, उसकी एक सच्चाई मेरे सामने आई। और इसी माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सच में हो रहा है, ये एक स्टोरी नहीं है कि हम बता रहे हैं। और ये हो रहा है बिकॉज हम लोग ना जाने या ना जाने कबाड़ी वाला एक ऑप्शन हम समझते हैं और उसको दे देते हैं, वो 100 रुपए, वो 1000 रुपए, वो 500 रुपए के लिए। बट कहीं ना कहीं हर साल कोई ना कोई मर रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में, नाइजीरिया में, गाना में, जहां जहां ई वेस्ट इलीगली डंप होता है वहां ये हो रही है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी के थ्रू अगर 1-2 लोग बच जाएं, दैट इटसेल्फ इज द मिशन ऑफ द कंपनी वेयर वी हैव अचीव्ड। Point, sir, and I was actually मतलब really feel sorry for that girl। और शायद ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसा कितना ही डेटा, कितने ही लोग होंगे जिनके बारे में हम सच में नहीं जानते हैं, जो इस ई वेस्ट के टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। कितनी ही हेल्थ रिस्क आई एम श्योर हो रही होंगी, बिकॉज उनमें से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, अगर वो लैंडफिल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं तो वो मिट्टी को भी गंदा कर रहे हैं, आजू बाजू के पानी को भी गंदा कर रहे हैं, विच इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द पीपल लिविंग नियर बाय। और ये छोटे छोटे विलेजेस जो सिटी से बाहर होते हैं, यहाँ आई एम श्योर ज्यादा इफेक्ट होता होगा। जिस तरह से आपने कहा कि 10 रुपए के केजी के भाव पर कचरा ट्रक तो वहां से निकल गया, बस उस कचरे का निपटान कैसे हुआ, हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट, nobody is bothered। and e-waste certainly बहुत ही बड़ी समस्या है। छोटी छोटी चीज, सबसे छोटी चीज तो मुझे लगता है ई-वेस्ट में बैटरी शुड बी कंसिडर, बिकॉज एट टाइम्स मैं देख रही हूँ मेरे ही घर में मेरे बच्चे आजकल लैपटॉप के साथ दे से कि ब्लूटूथ वाला वो यूज करना है, ईयरफोन यूज करना है, वायरलेस वाला माउस यूज करना है। आई एम द पर्सन जो अभी भी ओल्ड स्कूल से हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो वायर्ड माउस ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हर 4-6 महीने में मैं उसकी बैटरी बदलूं। वो वायर्ड ईयरफोन या नॉर्मल स्पीकर से सुनना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि मैं रिचार्जेबल वो ईयरफोन्स खरीदूं और उनको साल भर के बाद चेंज करने के लिए फेंकूं और फिर से नया लूं। सो ये जो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम शायद अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज दोस्तों उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं समझते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों से निकलने वाला केमिकल जो रिसाव है वो कहाँ, किसे और कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये आप बिल्कुल नहीं जानते। आप उसे कचरे की थैली में डालकर या कबाड़ी वाले को देकर मुक्त हो जाते हैं, बट आप नहीं समझ पाते कि आपके उस सिर्फ एक फेंक देने से, और हाँ ये भी होता है, हर हाउस होल्ड यही कहते हैं मेरी एक चीज फेंकने से क्या फर्क पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। एक करके एक सोसाइटी में ही अगर 500,000 घर है, तो आप सोचिए कि हर घर से रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो डिस्कार्ड हो रही है। कभी कोई चीज खराब हो गई है इसलिए, कभी कोई चीज नई ले आए हैं इसलिए, बट हाँ बाकी कचरे से ज्यादा ये ई वेस्ट, जिसमें कि बहुत सारी केमिकल्स, बहुत सारा प्लास्टिक यूज हुआ है, उसकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। सो आपका सहयोग तभी हम ला सकेंगे जब आप खुद जागृत होंगे, खुद अवेयर होंगे अबाउट दीज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एंड नॉट ओनली रूल्स बट यू शुड बी मोर अवेयर कि हमें इसे कैसे कम करना है। बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा कोड याद आता है विच सेज डिस्पोज रिस्पॉन्सिबली। उस कचरे को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना ये एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट फ्रॉम ई वेस्ट
कैटेस्ट्रॉफिक, लिटरली ये कैटेस्ट्रॉफिक की तरफ बढ़ता जा रहा है अगर हमने इसके मैनेजमेंट के लिए अभी इस समय तुरंत ही काम नहीं किया तो। एंड आई फील रियली सॉरी अबाउट दोस किड्स, जैसे कि मैंने उस एग्जांपल में भी बताया या आपने अपने एग्जांपल में बताया, वो बेचारे नादान बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता है कि वो जिस कचरे के आसपास है, जहां हाथ डाल रहे हैं, जैसे सेग्रीगेट करने पहुंचे हैं, उस कचरे में उनको क्या मिल जाएगा जो उनके लिए तकलीफ दे हो सकता है। लाइक आपने कहा कि पोटेशियम साइनाइड की तरह उसको बताशा लगा, या जैसे मैंने उस तरह से एग्जांपल दिया कांच या ब्लेड पड़ी हो सकती है। ऐसे कितनी ही हजार्डस सब्सटेंसेस हैं जो हमारे कचरे में जा सकते हैं। तो इस ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए छोटी सी चीज, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले के एग्जांपल में कहा कि वो जो मैडम थी वो अपने घर में सेग्रीगेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही कचरा बिल्डिंग से नीचे जा रहा था वो पूरा इकट्ठा हो रहा था। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, लेकिन वो जरूरी है कि हम उसको अलग रखें। अगर आपके घर में कांच टूटा है, उसे पेपर में रैप करें, पुराने न्यूज़पेपर में रैप करके फिर डस्टबिन में डालें। अगर आप किसी गैजेट को, किसी बैटरी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, उसे सीधे डस्टबिन में न डालें। आप चेक कीजिए, आजकल काफी एड्स भी टीवी पर आ रही है, इवन ऑन इंटरनेट, या एजेंसीज लाइक 3R0 वेस्ट आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, जो कि उस ई वेस्ट को मैनेज करने को तैयार है। आप कॉल कीजिए अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, लोकल फेसबुक ग्रुप्स में चेक कीजिए कि हम इन बैटरीज को, इन पुराने मोबाइल्स को, पुरानी वायर्स को, पुराने लैपटॉप से कंप्यूटर्स को कहाँ दे सकते हैं, किस तरह से रिसाइकलिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। सो शिवराम जी, जैसे कि आपकी जितनी भी 3R0 वेस्ट की सर्विसेज हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट देम: ई वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, बायो माइनिंग, इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग यूनिट्स, and more services are still in line from 3R0 waste, and they are working continuously to help manage the waste which we are creating, but they have taken the responsibility to manage it. And इससे मैं एक चीज पे निष्कर्ष पे आती हूँ कि मतलब कहना मुझे ये चाहिए कि आपका काम बहुत तरक्की करे, बट मैं कहना ये चाहूंगी कि कचरा कम से कम हो, बिकॉज आप जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष ये होना चाहिए कि लोग कचरा ही कम प्रोड्यूस करें। ये नहीं कि आपका कचरा दिन ब दिन बढ़ता रहे, ये उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं उम्मीद सिर्फ इतनी करूंगी कि ये कचरा दिन ब दिन कम हो। एंड जैसे हमने भी बात की अवेयरनेस की, गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो आई जस्ट केम टू नो कि 2024 की मार्च में एक इको सस्टेन एक्सपो होने जा रहा है, आई थिंक इन हैदराबाद। And it is more than just an event, because it is a pioneering initiative aimed at catalyzing positive change in waste management practices and charting a course towards a cleaner, greener and sustainable future. So ये एक नए टाइप का एक्सपो हमें देखने को मिलेगा। So people who are in and around Hyderabad, do try and see कि गवर्नमेंट किस तरह से emphasize कर रही है इस इनिशिएटिव पे, जिसमें कि cleaning and sanitization, optimizing the use of recycled waste है, efficient treatment of effluents encompassing waste water है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, टैकलिंग एयर पोल्यूशन है। इस तरह की कई एनवायरमेंटली कंसर्निंग चीजें वहां पर डिस्कस एंड शोकेस होने वाली हैं। ओके, सो आपकी इन सब सर्विसेज के अलावा शिवराज जी, what are your future initiatives and how do you like 3R0 waste in coming years from now? Yes, so specifically अगर कोई भी हमारा वेबसाइट जाएगा, अगर विजन, मिशन, वैल्यूज में जाएंगे, सबसे पहला वैल्यू जो हमारा है 24/7 इनोवेशन जी। एंड बिकॉज आई बिलीव फर्मली कि जो इस इंडस्ट्री का हाल रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं, दे हैव बीन 20 years in this industry, but still this industry is not in limelight. It is not considered as an industry still today. So मुझे अगर इस इंडस्ट्री को एक ऐसा मुकाम में लेके जाना है जहाँ की इस इंडस्ट्री को दर्जा मिले, and we are proudly, my employees, I call them warriors because they are managing your waste, the citizens waste of all over the world. So innovation is my key. और इसी के दौरान कि आज मैंने 8,37,000 पीपल को अवेयरनेस किया, बट इस अवेयरनेस को मुझे अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है। इसको पूरा एक सिटी गुड़गांव, 20 लाख लोग गुड़गांव के, या फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.4 बिलियन पीपल। सो दिस इज एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझे, इंटरनेशनल सिमिलर एक जूम कॉल हो रही थी कि शिव, हु इज योर टारगेट कस्टमर, राइट? सो आई टोल्ड हिम आई वांट टू रिड्यूस पोल्यूशन, आई वांट टू सो मेरे जो फ्यूचर प्लान है, इट इज एप्लीकेशन कॉल्ड
रिवॉर्डिंग सिटीजन्स फॉर सस्टेनेबल जेस्चर्स। ओके, कि हर वो आदमी, इंडिया का हर वो सिटीजन जो है वो पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है। उसमें से सिर्फ 20% लोगों को पता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है जी। जो, और जिस 20% को पता है उनको ये नहीं पता है वो कितना अच्छा कर रहे हैं या फिर कितना और अच्छा कर सकते हैं, राइट? जी, सो जी। दिस इज दैट गैप, and I want to see that my India is able to, all of us are able to do good for our planet, because जैसे हमें मिला था ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस को वैसे हमें सौंपना है, जी। राइट? जो आज के डेट में, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, 100 years डेनमार्क took to change their mindset, इंडिया doesn't have 100 years, और अगर 100 साल रहा तो हम इस अर्थ की सत्यानाश कर देंगे। जी, जी। तो हमें चेंज होना है, और उस चेंज के मुहिम में ये लॉन्च किया मैंने कर्मा कॉइन्स। सो कर्मा कॉइन्स एक ऐसा ऐप है जिसमें हर दिन आपको पता चलेगा कि आपने अच्छे काम क्या किए। आज आपने लोकल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खरीदी, एग्जांपल, सो यू आर हेल्पिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट? You are buying, produce from local, so you are giving revenue to the local ecosystem. You are using EV. आप ईवी चला रहे हैं, महीने का अगर 2000 किलोमीटर चला रहे हैं तो हर वो किलोमीटर पे आपको एक ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन मिलेगा। अगर आप एक वीगन रेस्टोरेंट चले गए, वीगन खाना खा रहे हैं, तो वीगन खाना में लेस कार्बन फुटप्रिंट होता है, काफी कम लोगों को पता होगा। उसके ऊपर वेजिटेरियन, उसके ऊपर नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें भी आप एक प्लेनेट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप मीट नहीं खा रहे हैं, उस मीट प्रोड्यूस करने के लिए कितने हजार लीटर ऑफ वाटर वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो वो सब, हर एक वो आप अपनी वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हो तो हर दिन आपको पॉइंट मिलेगा। अगर आप 2 सेग्रीगेट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट मिलेगा, अगर आप 4 कर रहे हैं तो 4 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप 16 कर रहे हैं तो 16 पॉइंट मिलेगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू बी इन द हाउस होल्ड ऑफ अ पर्सन एवरी एक्टिविटी इज डूइंग। ये एक सुपर ऐप हम बनाने का एक मुहिम सोच रहे हैं, अभी ये सोच पे है, अभी बहुत ही शुरुआत है इसका, और हम चाहेंगे कि ये भी एक इंस्टाग्राम जैसा या फिर एक पॉपुलर ऐप बने, व्हाट्सएप जैसा एक ऐप बने, कि लोग अपना अच्छा काम को दिखाने के लिए कोशिश करें, rather देन हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, बट अगर हमारे प्लेनेट के लिए क्या अच्छा होगा, आज के डेट में कोई भी ऐप नहीं है। तो हमारा ऐप का नाम भी कर्मा कॉइन है। आप, और इस ऐप का ऐसा रहेगा कि प्राची जी, कि आप सपोज एक बिल्डिंग में रह रहे हो, 500 फ्लैट है, 500 फ्लैट में सबसे नंबर 1 सस्टेनेबिलिटी फ्लैट कौन सा है, आज किसी को नहीं पता। ओके। तो 4 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, चारों के पॉइंट मिला के उस फ्लैट को पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को हर एक फ्लैट में ये पॉइंट होगी। तो हमें पता चल जाएगा फ्लैट नंबर टावर डी का 171 फ्लैट नंबर का पॉइंट आज टॉप में चल रहा है विद 10,050 पॉइंट्स। सो मेरा विजन है कि टॉप 3, हर एक सोसाइटी का टॉप 3, और उसी तरह से अगर एक सिटी में विच सोसाइटी इज नंबर 1, ये भी डेटा निकल आएगा। डीएलएफ सेक्टर 1 की ये सोसाइटी का नाम है M2, इसमें टोटल सारे सिटीजन्स का पॉइंट मिला के उस बिल्डिंग को दिया जाएगा, और गवर्नमेंट फिर देखेगी कौन सी बिल्डिंग नंबर 1 है, उसको अवार्ड मिलेगा। That's great. That's really great. There is no data today with the government, तो मैं ये डेटा बिल्ड कर रहा हूँ। That is my bigger vision, wherein we are able to talk in masses। ये रिसाइकलिंग जो कर रहा हूँ, इसको प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ कि मेरे पास पूरा इकोसिस्टम है, मैं पूरा इस सिस्टम को देख पा रहा हूँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एंड देन वी कैन ट्राई टू चेंज इंडिया। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मुझे इससे याद आता है कि सही में, मतलब ना, हम एक होता है ना, स्कूल में जब बच्चों को पढ़ रहे होते हैं तो वही मार्क्स है, एक्सीलेंट दिया कि नहीं दिया, स्टार मिला कि नहीं मिला, दैट इज ऑलवेज अ मोटिवेशन टू दैट चाइल्ड। तो इट इज इन सिमिलर वे, आई थिंक, हाँ, लोगों को हमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अवेयर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, दिस इज रियली गुड दैट यू आर कमिंग आउट विद दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस एंड ऐप, एंड आई रियली लव द नेम कर्मा कॉइन्स, बिकॉज आपके जो भी डेली पॉजिटिव एंड सस्टेनेबिलिटी वाले कर्म हैं, वो एक बार अगर नोट डाउन हो रहे हैं तो यू विल बी मोटिवेटेड टू डू देम मोर एंड मोर। लाइक मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, बिकॉज मैंने जब ये इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया था, 2 साल हो रहे हैं, शुरू में मेरे बच्चे भी बहुत समझ नहीं पाते थे व्हाट एम आई डूइंग। मैं घर पे दूध की थैली को ऊपर से कट करने के लिए कहती
कहती थी they were like क्या फर्क पड़ता है, बट धीरे धीरे करते करते साल भर में अब ये फर्क आ गया है कि जब हम बाहर जाते हैं तो मैं किड्स आर नाउ सेइंग मम्मी बल्क में खरीद लेते हैं, मम्मी प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें जब मैं देखती हूँ कि वो चेंज मैं ला सकी हूँ, तो हाँ दैट इज अ मोटिवेशन टू देम कि हाँ नाउ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड नाउ दे आर कन्विंस्ड आल्सो कि हाँ ये करने से ना ये होगा। सो हाँ आई थिंक इस तरह के छोटे से मोटिवेशन से भी अगर हम अपने इस प्लैनेट अर्थ को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को और अच्छा, स्वच्छ, बेहतर, ग्रीनर प्लैनेट दे सके, what more else we could ask for. And I really love this initiative of yours, and I wish कि आप जल्द से जल्द इसे आपको लेकर आए. We all are looking forward to increase our karma coins because हर जगह Instagram, Facebook की likes से ज्यादा I would say कि इसके likes हम लेना ज्यादा चाहेंगे, because अपने sustainability gestures को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अपने carbon footprint को ज्यादा से ज्यादा कम करें. I will say, इस चीज की तरफ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स शायद जरूरी है, एंड दिस इज रियली समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सिर्फ मुंह से कह देना ये करो एंड मोटिवेट करना थोड़ा सा फर्क पड़ता है. तो कुडोज टू यू, एंड आई रियली लव जब आपने मुझे कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज नहीं वॉरियर्स कहते हैं. सो really kudos to 3R0 Waste, your team and all the warriors who are constantly working to manage the waste, to reduce the waste and help to keep this planet Earth waste free. And littering isn't cool guys, so please litter ना करें, अपने waste को समझें, अपने waste को कम करने की कोशिश करें. and जहां तक हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भी बात की थी, तो प्लीज डोंट पुट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन द bin because that is not the right place for it, and be a part of solution, don't be a part of pollution. well शिवराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते, एंड इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन बिकॉज आपसे जो हमें रूल्स पता चले, हमें ये पता चला कि ई वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे और बाकी जगहों पे किस तरह से काम होता है, हाउ दिस कचरा इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्लेसेस जो लोगों को डेटा ही नहीं मालूम है कि ये भी होता है, बिकॉज उनके लिए वही मैंने जैसे कहा ना, कचरा घर के बाहर निकाल दिया, वहां पर कहानी खत्म हो जाती है. सो आई थिंक ये हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि कचरे की गाड़ी का सफर तो वहां से शुरू होता है जो कि बाद में ओशंस या लैंडफिल्स में जाकर खत्म होता है, और वहां पे भी वो खत्म नहीं होता है बिकॉज इट इज अगेन अफेक्टिंग द एनवायरमेंट अराउंड दैट प्लेस, बिकॉज उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उसका पानी में जाना, लोगों का गलती से उसको खा लेना, दैट इज अफेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ इंक्लूडिंग सर्टनली अर्थ की भी हेल्थ. सो थैंक यू शिवराव जी फॉर कमिंग ओवर ग्रीन तत्वा टॉक्स. इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड नोइंग सो मच फ्रॉम यू, and I wish 3R0 Waste को lots of best wishes. Keep doing the great work, and मैं चाहूंगी आपका कचरा कम से कम होता जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक एंड अवेयर होते जाए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सो लास्ट एक वर्ड कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को इस माध्यम से कि हमने 3R का नाम काफी सुना है जी. अभी इस कन्वर्सेशन में अगर ऑलमोस्ट 40-50 मिनट में आपने बहुत बार सुना होगा. और ये भी एक मैं अपने एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी अगर इंटरव्यू में पूछता हूँ फुल फॉर्म ऑफ 3R, देयर आर नो डिफरेंट आंसर्स. द राइट आंसर व्हाट आई लाइक इफ पीपल से दिस इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है मेरे लिए जी. अगर कोई आगे रिसाइकल, रिड्यूस बोलता है तो आई गिव 0 पॉइंट्स. एग्री. रीजन इज कि पहला स्टेप है रिडक्शन करना, और ये आपके घरों से होगा, आप लोगों के वजह से होगा, राइट. सो अगर मुझे 2 फोन नहीं चाहिए तो एक फोन में ही मेरा काम चल रहा है, तो वी शुड नॉट बाय द सेकंड. कोई अगर आपको सो दैट इज द फर्स्ट रिड्यूस. सेकंड इज रीयूज. अगर आप कहीं हॉलिडे पे गए हो और आपने पानी बॉटल, जनरली आई वुड प्रेफर कि पानी बॉटल आप लोग लेके चलें, बट अगर नहीं लिया, आपको प्यास लग रही है तो बॉटल खरीदना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट डाई बिकॉज ऑफ थर्स्ट. सो आपने बॉटल खरीद ली, तो बॉटल अगर खरीद ली, उसको पानी पी लिया, उसको मत फेंकिए, उसको ट्राई कीजिए रिड्यूस करने के लिए. मे बी एज अ प्लांटर, मे बी एज अ स्टोरेज ऑफ समथिंग, बिकॉज दैट हैज अ लाइफ विच कैन बी यूज्ड. सो दैट इज रीयूज. एंड द थर्ड थिंग इज रिसाइकिल. सो लोग इसलिए मुझे कहते हैं कि यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट सूटेबल टू बी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस रिसाइकिल और तुम बात करते हो रिडक्शन की और रीयूज की, तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा. तो मेरा कहने का ये सिंपल सा मतलब है कि इतना वेस्ट है. इंडिया इज जनरेटिंग 80 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट. सो देखिए, इसका अगर 50% भी रिडक्शन हो जाए, जो अभी पैरामीटर्स हैं वर्ल्ड की देखने से, देयर इज नो रिडक्शन, दे विल बी हाई ओनली.
बट अगर रिडक्शन हो भी जाता है, देर आर मल्टीपल प्लेयर्स कैन, हम चाहते हैं कि वो लैंडफिल नहीं जाए, उसका रिसाइकिल हो प्रॉपरली. सो देर इज इनफ पोटेंशियल ऑफ रिसाइकलिंग. सो अगेन एज आई सेड, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. थैंक यू वेरी मच. दिस इज शिव राव signing off from this podcast. थैंक यू शिवराव जी, थैंक्स अ लॉट. बिल्कुल सही कहा आपने. इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है. पहले रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए जितना जरूरी हो. आप ना लाएं घर पर, अगर ले भी आए हैं तो उसे यूज करने की कोशिश कीजिए. जिन चीजों को भी आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कांच की बोतल है, जार है, कपड़ा है, और वो भी जब करना खत्म हो जाए तब आप रिसाइकलिंग के बारे में सोचिए. उसे डस्टबिन में डालने से पहले प्लीज फिर से सोचिए कि ये कहाँ रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है. तो आपके इस सीक्वेंस ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल को याद रखने से आप वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपना कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं. एंड गाइस, डू कीप अ वॉच ऑन 3R जीरो वेस्ट की साइट, बिकॉज कर्मा कॉइन्स विल सून बी गेटिंग लॉन्च्ड. एंड डू ट्राई एंड इंक्रीज योर कर्मा कॉइन्स. आपके सस्टेनेबल जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए भी. एंड जहां हमने 3Rs की बात की, तो दलाई लामा जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है कि फॉलो द 3Rs: रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शंस. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है रिस्पेक्टिंग द अर्थ एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस, reuse and recycle. So thank you very much guys. That's all for today. Panchatattva Girl will be back with more positive sustainable stories. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए. Thank you. Pranam. Bye bye. Namaskar.